I need some clarifications. Honorable Chief Minister Saab had given a long clarification, but I need some few clarifications, sir. The first and foremost, sir, which I want to know from Honorable Chief Minister Saab is that, sir, what was the assistance provided by the Government of India to the state to fight COVID? What was the equipment given? And what was the financial help given by the Government of India to the state? This is very important, sir. Secondly, sir, Honorable Chief Minister Saab had spoken about Osmania Hospital. I want to reiterate my demand once again. We are against the demolition of Osmania Hospital. Osmania Hospital हमारी पहचान है, हमारी शान है, हैदराबाद की नाक है. आप खुदा के लिए उस्मानिया को गिराइए मत. Many heritage structures को, कई हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को जो पुराने हैं उसको हम जिंदा रख सकते हैं. आज उस्मानिया गिरा तो कल के हाईकोर्ट को भी गिरा देंगे. तो आप बाजू में खुली जमीनें वहां बनाइए. एक हेरिटेज है, एक पहचान है, पुराने शहर का ज्वेल है. मैं कहूंगा, मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, दरखास्त करता हूं कि उस्मानिया दवाखाने को मत गिराइए, उसको बनाइए, उसको जिंदा रखिए, उसकी अजमत को बहाल करिए, उसकी शान और शौकत को जो वीरान हो चुकी है उसको दोबारा बहाल करिए. और सर, I also like to know from the Honorable Chief Minister is that so important. Bharat Biotech. Bharat Biotech is in a second stage for the COVID vaccine. Sir, through you, I would like to request the Honorable Chief Minister Saab to please call for a meeting, and we should also have some share in the vaccine that would be made. If not, नहीं तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलेगी, वो बोलेगी और सब चला जाएगा. यहां बन रहा है, यहां पे मेहनत हो रही है, यहां से निकल रहा है, हमको कुछ नहीं मिलेगा. तो भारत बायोटेक वालों को बुलाकर बात करिए, उनसे मीटिंग करिए. दे आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क. वी शुड ऑल्सो appreciate them for the work and the research which they are doing. कि तेलंगाना को हेल्थ के नक्शे पर ले आए भारत बायोटेक. It's a very big achievement, sir. Sir, and fourthly, most important clarification, sir, the government has done whatever possible they could have done to fight the COVID, to treat the COVID patients. They have done. Honorable Minister Saab and Chief Minister Saab had also said, sir, but one reality is there. The people are losing the confidence in the government hospital. We need to build up the confidence of the poor people for going and getting treated at government hospitals. It is very important, sir. Why is it that a COVID patient has the fear and is scared to go to government hospital? We all need to work, build up that confidence and say that, okay, do not go to private hospital, go to government hospital. They are treating well, they are treating good. We need to build up this confidence. This is very important, sir. Sir, also, sir, please. A major clarification I want to ask, sir. I thank the Chief Minister, sir, for saying that he would consider in including COVID in Arogyashri. He said he'll consider, he'll think about it. I thank you very much, sir. Sir, one request I want to make is that now, if any patient comes to the hospital where they are taking Arogyashri, in the Arogyashri package, COVID treatment is not included. Like if I go for a health problem to hospital, the doctors are scared to touch me. They do not want to touch. If they have to put a stunt or have any surgery, they do not want to touch the patient unless and until the report comes. Not the antigen, sir. We need to do the real RT-PCR test for this. So kindly include some amount in that. This is very important. If not, the doctors, the treating doctors and the treating nurses will get infected, sir. And one more clarification and request which I want to make to Honorable Chief Minister Saab is that, sir, in this, many patients have lost their life or they have treated and they have lost their savings by getting treatment in private hospitals. Any BPL person, CM Relief Fund से कुछ भी अमाउंट उनको मुकर्रर करके दे दीजिए तो गरीबों को बहुत फायदा होगा इससे. सर, आज माशी तौर से बहुत परेशान है गरीब. खाने को खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, कर्जों में है, सेविंग चले गई है. कुछ मदद हो जाती है उनकी अगर आप करेंगे, सर. सर, and also, sir, I just want to
Tell one thing, sir, in this COVID period, there was a crisis, and crisis was being getting created कि ऑक्सीजन की परेशानी, ऑक्सीजन क्या शॉर्टेज होगा हॉस्पिटल्स में. If खुदा ना खास्ता second wave comes, we should tackle and see that this oxygen shortage should not happen, sir. It should not happen, sir. Sir, lastly, sir, I would like to just say that, sir, I'm not criticizing. फिर से बोलेंगे अकबर साहब तनकीद कर रहे, तनकीद नहीं कर रहा हूं साहब. मैं बताना यह चाह रहा हूं कि कितना कैसा एटीट्यूड है. आप देखिए साहब, इसमें ये मिनिस्टर साहब जो स्टेटमेंट दिए, उसमें पेज नंबर 2 में आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के बेड्स के बारे में, ऑक्सीजन बेड्स के बारे में कहे हैं कि 10,000 ऑक्सीजन बेड्स हैव बीन क्रिएटेड बोल के बोले साहब उसमें. और आप ये मेडिकल हेल्थ बुलेटिन जो हम हाई कोर्ट में डाल रहे हैं सर, विच वी सबमिट इन द हाई कोर्ट एंड ऑल्सो टू द प्रेस, द टोटल ऑक्सीजन बेड्स आर 5,861. नोट में 10,000 बोल रहे हैं आप, हाई कोर्ट को जो रोज दे रहे हम, और इसमें 5,000. तो कौन सा सही है बताइए सर. आई एम श्योर इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द मिस्टेक ऑफ द ब्यूरोक्रेट सिटिंग देयर. दे एम्बैरस द गवर्नमेंट, दे डू नॉट टेक इट सीरियस. तो यह बात मैं कहना चाह रहा हूं साहब, आप काम करें और काम को बयान क्यों नहीं करते. काम जो करे हैं, जो खिदमत करे हैं, जो लड़े हैं इस दौर में, उसको बयान क्यों नहीं करते. सर, एंड वन मोर थिंग सर, through you I would like to request the honorable chief minister sahab, sir, we have many municipal markets लॉकडाउन के पीरियड में बंद था. लॉकडाउन के पीरियड का रेंट देने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है. प्लीज एग्जाम दैट रेंट. सर, इन दिस लॉकडाउन पीरियड पावर टैरिफ का बिल, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन द पावर पीपल डिडंट कम टू कलेक्ट द पावर बिल्स. It is their mistake that they didn't come, but they made the consumers pay the penalty. So this is unfair, sir. पूरा स्लैब बना दिया साहब, उसको आगे बढ़ के चला गया. गरीब की नौकरी नहीं है, खाने को खाना नहीं है. छोटे से घर में जहां पे 500, 800, 1000 का बिल आता था, उसको 4-4 हजार का बिल आया. बाज लोगों को 10-10, 20-20, 1-1 लाख का बिल आया. काइंडली लुक इनटू दैट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. सर, मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये जितने टैक्सीज होते हैं, टैक्सीज को रोड टैक्स और दूसरे टैक्सेस देना पड़ता है. एवरी गवर्नमेंट हैज इन अदर स्टेट्स हैव एग्जेम्प्टेड देम. काइंडली सर, ये भी गरीब हैं, इनके टैक्सियां बंद थे, अभी भी लोग नहीं चला रहे टैक्सी. उबर होने दीजिए, ओला होने दीजिए, जितने भी टैक्सीज हैं, इनके जो भी टैक्सेस है उसको एग्जेम करेंगे आप तो बहुत अच्छा होगा. और मैं फिर से आपसे यही कहूंगा सर कि आप भारत बायोटेक को बुलाइए. और मैं आप चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि मैंने तनकीद नहीं की, मेरी तनकीद हर वक्त बराए तामीर रहती है. और आप मेरे दोस्त थे, मैं आपका एहतराम व इज्जत करता हूं. आपको हम खदर की नजर से देखते हैं, और हमने हर वक्त, और आज मैं रिकॉर्ड में आके केटी रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करूंगा सर, इस वास्ते कि आई वेंट एंड आई मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू हिम अ ईयर बैक कि ये वक्फ लैंड है सर, ये वक्फ लैंड का है. तो केटी रामाराव साहब रंगारेड्डी कलेक्टर को बोल के वो वक्फ लैंड में इंटरवीन करके हमको 50 एकड़ दिलाए थे. और सर, कोविड के पेशेंट्स को बरियल ग्राउंड्स में बरी करने नहीं दे रहे थे कोई भी. उस वक्त यही बरियल ग्राउंड जो केटीआर साहब दिए थे वो काम आया. हम उसमें 310 मुस्लिम मैयतों को दफनाए सर. इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर. उसके साथ ही साथ मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, बराबर लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपसे दूर होंगे. मैं आज ऑन रिकॉर्ड आकर कहता हूं कि हर कोई कहता था कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें नहीं बनेगी, लेकिन मजलिस को, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और मुझे यकीन था कि मस्जिदें बनेंगी और हमारा चीफ मिनिस्टर बनाएगा उस मस्जिदों को. हम जाकर मिले और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने 1 मिनट नहीं लिया, कहा कि नहीं, जो भी हुआ गलत हुआ, मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे अफसोस है और मुझे खराब दिखा. पूरे हालात बताए और बोले कि आप लोग कहां बनाना चाहते बोलिए. हमने कहा साहब हम जहां था वहीं बनाना चाहते हैं. तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए. गलती हुई, मुझे अफसोस है, बयान दिया, कहा बना लीजिए. फिर उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि अकबर भाई देखिए, एक मस्जिद इधर थी, एक मस्जिद इधर थी, इसके बीच में जगह है, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए.
पूरी जमीन ले लीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी को यकीन हो या ना हो, हमको यकीन है कि आप बराबर मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, हमारी आवाज पर आप सुनेंगे और जो सही है उसको कबूल करते हुए उसका अमल करेंगे। मैं समझता हूं कि आप आज अगर अपने रिकॉर्ड में आकर बोले कि हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, नहीं, मैं हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा था, इस वास्ते कि यह हुकूमत मेरी है, मैं आपके साथ हूं, आप पे तनकीद नहीं। हुकूमत की नाकामियों को और कामयाबियों को बताने में नाकाम जो हुए उसको उजागर कर रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीफ मिनिस्टर साहब मेरे उठाए गए मसाइल पर जरूर तवज्जो देंगे और उम्मीद करता हूं कि आप जो आरोग्यश्री और बीपीएल फैमिलीज के बारे में, टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में, म्युनिसिपल के रेंट के बारे में जो उठाया हूं मैं, उस पर आप हमदर्दाना गौर करेंगे। शुक्रिया साहब। సార్ దీని తర్వాత వారికి ఏంటి సార్ కొంచెం సీఎం గారు. స్పీకర్ సార్ ఇప్పుడు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి అసిస్టెన్స్ గురించి అడిగినారు అధ్యక్ష. ఇది తెలుగులో కరెక్ట్ చెప్పానంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి అసిస్టెన్స్ శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తాలు. उर्दू में बोलना है तो कोई ख़ास असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया और इस दरमियान में जो पैसे नेशनल हेल्थ मिशन के तरफ रिलीज़ हुए वो आम रिलीजेस है, वो है 256 करोड़ से, जस्ट 256 करोड़. एक 90 करोड़ अलग से दिए. अब उसका फिर उसमें गिनती करते हमारे बजट के साथ जोड़ते क्या जोड़ते वो अंत में पता चलेगा और कुछ नहीं इसके सिवा. इसके अलावा कोई असिस्टेंस आया जो कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में कहीं भी वेंटिलेटर नहीं था, ना मरकज़ के पास ना रियासत के पास. तो हम अपने कोशिश करें, हम एक 700-800 खरीद ली अपने कोशिशों पे, और मरकज़ का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट दिए 647 वेंटिलेटर्स दिए और उसको हमारे जो बजट होता है हिस्सा उसमें काट रहे. तो अलग से कुछ नहीं दिए, एक भी फ्री में नहीं, तो ये काटा जा रहा है. ये पता नहीं क्या होता है आखिर में, लास्ट में क्या करते नहीं मालूम. ये हकीकत है, बिकॉज दीज आर अकाउंट्स विच आर ऑडिटेबल. इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल सकते. दिस विल गो टू द काग आल्सो. व्हाट असिस्टेंस हैज कम